You can start the session. Please start. Okay, can you hear me? Yes, we can Can hear you hear you. me clearly? We can hear you. मेरी आवाज आ रही है इरफान? जी, we can hear you. Okay. Bismillah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Dr. Salman and I'm senior registrar at the Fatma Memorial Hospital. Today the topic of my presentation is how we can utilize these last 4 months before the October exam. I think the time is very crucial and the time is the main key in planning and all the hard work that you need to do. You have to plan accordingly with the time you have in your hand. Okay, these 4 months you can. I think almost everybody has done their first read. Okay, and if not, then do finish your first read as quickly as soon as possible, so that you have plenty of time for your second and the third read. In my opinion, and that's how I did my preparation during my exam. I have divided these 4 months, and I thought, how many revisions can I do in these 4 months? I think 2 to 3 revisions at least are very necessary to get through the exam. Okay, and I will say this: start the studying region wise, and divide the time according to the region. Like some regions are very lengthy, like arthroplasty is very lengthy, and I will say the arthroplasty is lengthy, hand is a bit difficult, and the lengthy one. So manage give the time accordingly to the region wise. Like arthroplasty will take more days, and the peds or pediatric trauma will take few days. Okay, according accordingly manage your time according to the length of the regions you are going to study. And I will recommend whatever book you are reading, whatever is your primary book, please consult 2 books at least, because there are many things which are not given in a single book. And for example, I have studied Campbell. It is not everything. I will say that everything is almost is mentioned in the Campbell, but there are not in a they are in a haphazard manner. They are not in a sequential manner. Okay, you have to take out the things out of the Campbell if you are reading Campbell. So to make this easy, you must I will suggest you must follow the author bullet with the Campbell as well. I will say, like if you are reading a topic of supracondylar fracture of the humerus, I will say that first you mobile and read the topic from the orthobullet in your mobile, so that you will get to know what are the points that you need to remember, and then start studying the main book like Campbell or Miller or whatever you are reading. Okay, and I will say after first read, don't jump to the MCQs straight away. Complete your second read, and like in your second read, when you are done with one topic like one region, if for example if you are studying peds, if when you are done with the peds section, then do the MCQs of the peds only, not all the MCQs. Select the books. There are plenty of books which have region wise MCQs, and I will say try to read as much MCQs as much as you can, but I will say three, two to 2, 3 books or maximum 4 books are very much are 4 books are जो है ना वो बिल्कुल ठीक है. 4 बुक्स आप पढ़ लें तो वो बहुत है. इससे भी बहुत ज्यादा बुक्स अगर आप करेंगे तो आप थोड़े से उसमें ना आई विल से कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे. और कैम्बल मैंने कैम्बल पढ़ी थी, तो मैं कैम्बल में ये आपको मशवरा जरूर दूंगा कि कैम्बल बहुत लेंथी बुक है, और कैम्बल को पढ़ने के लिए आपको टेक्निक आपको पता होनी चाहिए कि आपने कैम्बल किस तरह से पढ़नी है. ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है नीड टू स्टडी वाइजली नॉट ब्लाइंडली, क्योंकि कैम्बल में हर चीज आपने नहीं पढ़नी है. इट इज बेटर टू गेट ओपिनियन ऑफ योर सीनियर हु हैव पास एग्जाम्स, कि उन्होंने अगर किसी ने कैम्बल पढ़ी भी है तो उन्होंने कैम्बल किस तरह से पढ़ी थी और कौन कौन से रीजन में से क्या क्या चीज पढ़ने वाली है.
और कैम्बल में से टेबल्स और जितने भी वो की पॉइंट्स, वो जो छोटे छोटे टेबल्स बने होते हैं, वो आपने मिस किसी सूरत नहीं करने। दे आर स्ट्रेट अवे एमसीक्यूज, ठीक है। उसमें सीधी सीधी वो ऑप्शंस, उसी में से 4 ऑप्शंस निकाल के आप आराम से एक एमसीक्यू जो है वो बना सकते हैं। इसलिए वो टेबल्स जो है ना वो आप लाजमी और बॉक्सेस जो है ना वो लाजमी पढ़ें। और बाकी पूल एमसीक्यूज का मैं सिर्फ ये ओपिनियन देना चाहूंगा कि आखिर में अपना टाइम अकॉर्डिंगली मैनेज करके आखिर में 10 से 15 दिन आप बचाएं, ताकि आप वो उन 10-15 दिन में, ताकि जब आपने दूसरी तीसरी रिवीजन अपनी कर ली हो तो उस वक्त वो पूल के एमसीक्यूज आप करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि आपने टॉपिक सारे पढ़े होंगे, आपको उसमें कोई एम्बिग्विटी है या कोई कंफ्यूजन है तो आप उसको कॉम्प्रिहेंड करना आपको ज़्यादा इजी होगा, बजाय इसके कि आप इस वक्त ही साथ साथ एमसीक्यू अगर आप करना शुरू करें तो मेरे ख्याल में वो थोड़ा मुश्किल होगा। एंड द लास्ट thing I will say that make a grip on your 3D. That is very very important. अगर आपकी 3D पे ग्रिप स्ट्रॉन्ग है तो फिर एमसीक्यू चाहे जिस मर्जी बुक से आ जाए आपको उसे सॉल्व करने में मसला नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी 3D वीक है और आपको पॉइंट्स इस बहुत अच्छी तरह से याद नहीं है तो दिस विल create a difficulty in solving the MCQs while you are in exam. Okay, thank you very much. This is I would have to say. And if you need to ask anything, you can ask me at the end. And now I will turn to Dr. Khan. So please. Thank you so much, Dr. Salman, and I'm very thankful for your all the feedback. Now I'm going to share another presentation, and after that we are going to have a session in which you all can ask the question. I have turned off my video because there were some issues in internet, so that you can hear me well. That's why. First of all, just some of you please text me that if you people can hear me, so that I can move on. Salman, can you hear me? Okay, let's move on so you people can hear me. First of all, I'm very thankful to Dr. Salman, and now I am going to tell you that how we can utilize these very important 4 months. We welcome Dr. Salman in our team of Surviving Orthopedics, and we hope that we will work together in future. So first of all, the first question is, am I ready to take the attempt? So at this moment, at least you people must have done one reading. I'm not saying that you people must have done a couple of readings, but at least one reading if you have done, then you are ready to take the attempt. The next question which we often ask ourselves is that I have read the course twice, thrice, yet I feel lost. This is the question, this is the thing, and many of the people who have just joined us, they are those who have done a single or double attempt, but they have failed. So I have read the course, but I feel myself that I am lost. At this point, if you have this feeling, do not worry. Keep this feeling away from yourself and just sit back. Utilize these 4 months as much as you can. What can you do? Then the next question, which a candidate who has failed the previous attempt, he thinks, did I opted for the right books? So my answer is yes, you opted for the right book. Whatever book you have opted it rightly. So do not worry about that I opted for the wrong books. If you have opted Campbell, Miller, or any other book, the book was right. Now utilize these 4 months. And the other question is, there are few our colleagues who feel that I have already taken attempts, multiple attempts, but I failed. What is going wrong? Yes, there is going wrong. I am going to share an experience with you people. When I started preparation, I contacted a guy. He is a wonderful guy. He has just passed the exam. I texted him that you failed last time. What was the reason? उसने जो मुझे मैसेज किया, I have copy pasted the message in 2 slides. पहला मैसेज उसने मुझे किया कि dear, I did all the preparation from Campbell last time. It took me 5 months to do Campbell. First 12 chapters of Apley, Handbook of Trauma, and a little Miller. ये सब कुछ उसने किया, but he failed. ये मैं आपसे एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ एक बंदे का जो बहुत काबिल बंदा है, he is very intelligent,
or if I say I will not take his name, but I'm telling you that he's very intelligent. He did all this, but he failed. फिर उसने अपना रीजन भी खुद ही मुझे बताया अगले ही मैसेज में. He said, अगला मैसेज वो मुझे करता है, द रीजन वाज लैक ऑफ प्रैक्टिस ऑफ एमसीक्यूज. और ये सारा उसी का मैसेज है, और मैंने ये मैसेज अपने पास संभाल के रखा था, बिकॉज ये मैसेज पढ़ के मुझे समझ आती थी कि जो उसने 2 मैसेजेस में मुझे बात कह दी है, ये बात बहुत पते की है. व्हाट यू नीड टू डू इन द गिवन एग्जाम इज डिवाइड योर डे इन 3 पार्ट्स. ये उसका एक्सपीरियंस है, अभी मैं नहीं कह रहा कि आप इसको ऐसे ही करें. फर्स्ट पार्ट, पूल विच इज नॉट सेक्शन लाइक पास्ट पेपर्स. सेकेंड पार्ट आप क्वेश्चन बैंक करें एक्सप्लेनेशन वाले, और थर्ड पार्ट वो कहता है कि थ्योरी करें. ये उसका फिर प्लान था. लेकिन आखिरी लाइन जो मैंने बोल्ड की है, वो उसने ऐसी लाइन कह दी थी जो मेरा ख्याल है आज के हर रेजिडेंट को मैं बताना चाहता हूँ, कि वो टाइम चला गया है जब लोग कहते थे कि आप 5 रीडिंग्स कर लें और आप पास हो जाएंगे. अब कैसा टाइम आ गया, नाउ इट्स ऑल अबाउट knowing everything about something and knowing something about everything. So you can't skip any topic in orthopedics now, but you must know something about every topic. Now coming on to माई स्टडी बुक्स. मैंने आपको जैसे पिछले लेक्चर में स्कीम बताई थी कि स्कीम क्या होनी चाहिए. आई स्टडीड मिलर एंड कॉपी पेस्टेड सम ऑफ थिंग्स फ्रॉम ऑर्थो बुलेट्स, और उसके साथ कैम्बल की जो टेबल्स, बॉक्सेस और प्रोसीजर्स थे. जैसे डॉक्टर सलमान ने कहा कि अगर आप कैम्बल भी पढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि ऑर्थो बुलेट से कुछ चीजें लेके स्टिक नोट्स लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद डेली 1 पोर्शन ऑफ द डे जो आपका होना चाहिए, वो इन 4 महीनों में भी टेक्स्ट बुक को आपने नहीं छोड़ना. डॉक्टर सलमान ने कहा कि आपकी टेक्स्ट बुक पे ग्रिप बहुत अच्छी होनी चाहिए. 4 महीनों में भी टेक्स्ट बुक नहीं छोड़नी. 1 पोर्शन डे का है जो होना ही चाहिए, और कोई ऐसा सिंगल डे इन 120 दिनों का नहीं जाना चाहिए जब आपने 100 एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन ना की हो. ये अपना गोल सेट कर लें, चाहे आप इन द एंड 50 कर सकें, और हर आप जो शुरू में एमसीक्यू करनी है वो करें जो एक्सप्लेनेशन के साथ दी हुई है. ऐसी बुक्स अभी ना करें जिसमें एक्सप्लेनेशन नहीं दी. सो स्टार्ट द एमसीक्यूज इन दिस लास्ट 4 months. चाहे आपको लगता है कि आपकी ग्रिप नहीं, आपकी ग्रिप होगी. You have read a lot. Now start the MCQ daily 50 to 100 MCQ with explanation, और ये आपका गोल होना चाहिए. Now the next question comes MCQ books. डॉक्टर सलमान जैसे उन्होंने कहा कि 4 books enough थी. मुझे लगता है कि this varies. डॉक्टर सलमान has माशाल्लाह very good grip on Campbell, और बाजुकात कुछ लोगों की ग्रिप इतनी अच्छी नहीं होती. So MCQ books आप 4 to 6 books के दरमियान रहें. I would say ऑर्थो बुलेट्स का कंप्लीट अनपेड जो सेक्शन है वो आप कर लें. अभी मैंने डिटेल इसको बनाया, मैं आगे आपको बताता हूँ. एक रिव्यू बुक है अपूर्वा मेहरा. इट कंटेन्स रिव्यू टॉपिक्स एंड एमसीक्यूज एज वेल. फिर मिलर के एमसीक्यू आते हैं, फिर एफआरसीएस श्री राम है, फिर मास्टर पास एफआरसीएस एओएस, और सर्वाइविंग ऑर्थोपेडिक्स की एमसीक्यू बुक इस महीने के एंड में आ रही है. उसमें डॉक्टर सलमान की भी कंट्रीब्यूशन है. सो उसमें हमने सारे पास्ट पेपर्स दे दिए. सो बेसिकली ये आपके पास्ट पूल को भी कवर करता है, आपकी एक्सप्लेनेशन वाली भी एमसीक्यू. इन एमसीक्यू बुक्स के अलावा आई थिंक यू विल नॉट नीड एनी, और इसमें से आप एक आधी स्किप कर सकते हैं, निकाल सकते हैं. अब मैंने आपको कहा है कि लास्ट 4 months को कैसे यूटिलाइज किया जाए. मैंने एक प्लान बनाया हुआ था, मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ. मेक अ प्लान, डिवाइड 4 months इन 2 पोर्शंस या 3 पोर्शंस में. अब कैसे डिवाइड करोगे? पोर्शन 1 होगा कि 2 months का. इन 60 डेज को आप ऐसे डिवाइड करें कि आपके 60 डेज डेली डे ना 2 पार्ट्स में डिवाइड हो. 1 फॉर टेक्स्ट बुक एंड 1 फॉर एमसीक्यूज. अब मैंने आपको सारे एमसीक्यूज लिख दिए कि टोटल कितने एमसीक्यू हैं. तकरीबन 1500 एमसीक्यूज हैं जो अनपेड बुलेट्स के हैं. 3000 एमसीक्यूज हैं जो मैंने बाकी किताबों में शेयर किए हैं, और पास्ट पेपर्स के 1100 एमसीक्यूज हमने सर्वाइविंग ऑर्थोपेडिक्स में विद एक्सप्लेनेशन डाले हैं, जो इंशाल्लाह इस महीने के एंड पे आ जाएगी. सो व्हेन यू हैव the portion 1 of your these 4 months divided 2 months में आपका एम होना चाहिए कि एक टाइम में टेक्स्ट बुक सुबह का टाइम, दोपहर का टाइम करूं, एंड रात में 50 से 100 एमसीक्यूज कर लूं. देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट. इन दीज 2 months एम क्या होना चाहिए कि ये सारी एमसीक्यूज से आप एक बार गो थ्रू हो जाएं, और जो मेरे कोर्स की सेकेंड रीड है वो एटलीस्ट 2/3 हो जाए 60 डेज में, या थर्ड रीड जो भी जिसकी रीड चल रही है. पोर्शन 2 3rd month है. Utilize these 30 days, sorry मैंने 60 लिख दिया, 30 days by dividing your portion in 3 days in 3 portion. 1 for textbook, 1 for MCQ, 1 for surviving orthopedic past MCQs.
और सबसे एंड में आता है जो आफ्टर दिस मंथ my textbook review rapid revision must be completed. I have given 2 reads to all MCQ in 3 months. So ये जो 4 महीनों में से पहले 3 months हैं वो जब एंड हों तो आपने MCQs कम से कम 2 बार और 1 बार आपने अपनी टेक्स्ट बुक कंप्लीट कर ली हो इन 3 months में. एंड द लास्ट मंथ इज अ स्ट्रेसफुल मंथ और ये पर्सनलाइज इसको करना चाहिए. आप अपने जितनी आपकी अब तैयारी होगी उस हिसाब से इसका प्लान बनाएं. ऐसी डू एनीथिंग दैट यू ऑलवेज गो रॉन्ग. जो टॉपिक्स आपके, जो मॉड्यूल आपके वीक हैं, जरा उनको थोड़ा सा और टाइम दे दें. ओके, सो अब आपने क्या करना है, डोंट लीव द टेक्स्ट एंड डू नॉट रीड द टेक्स्ट बुक टू मच आखिरी मंथ में. टेक्स्ट बुक छोड़नी भी नहीं है लेकिन ज्यादा नहीं पढ़नी है आखिरी मंथ में. सिर्फ समरीज पढ़नी है जैसे मिलर के एंड में लिखी हुई है. फोकस अपना एमसीक्यूज पे रखना है, पास्ट पेपर के उन क्वेश्चन पे रखना है जो डिफिकल्ट. और एक चीज, वो क्वेश्चन छोड़ दें जो किसी को नहीं आते, क्योंकि एग्जामिनेशन में वो किसी क्लू से आएंगे, वो बाहर जरा क्लू के बगैर आ गए. और इन द एंड आखिरी टिप्स सिर्फ दूंगा, उसके बाद आई विल एंड आई विल आस्क यू कि अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं मुझसे, सलमान से, वो आप पूछ लें. गोल्डन टिप ये है कि व्हाट्सएप पे 3 से 4 सीरियस लोगों का ग्रुप बनाएं. डू नॉट मेक ग्रुप ऑफ 70, 80, 90 पीपल. सिर्फ 3 से 4 एक ग्रुप आपका होना चाहिए जो सीरियस लोगों का हो. और उसमें क्या अगर तो आप डे स्कॉलर हैं और मिल के नहीं पढ़ सकते तो व्हाट्सएप पे ग्रुप बना लें. अगर आप लोग मिल के बैठ के पढ़ सकते हो ना, तो फिर एक काम करें कि मिल के बैठ के ही डेली का कोई ना कोई ग्रुप होना चाहिए स्टडी. अगर नहीं है तो व्हाट्सएप इज अ वेरी गुड थिंग. और व्हाट्सएप ग्रुप को मैंने कैसे यूटिलाइज करना है, व्हाट्सएप ग्रुप को ऐसे यूटिलाइज करना है कि सिर्फ 3 से 4 लोग मैक्सिमम होने चाहिए और हर बंदा अपनी इनपुट दे. जो इनपुट नहीं दे रहा, सीरियस नहीं है, प्लीज किक हिम आउट. और जो बड़े व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनमें आपको बहुत ज्यादा एम्बिग्विटी होती है, पूरा दिन लगे रहते हैं और एक क्वेश्चन का एंड पे कोई आंसर नहीं होता, सब लोग कंफ्यूज जाते हैं. इसलिए 3 से 4 अपने कोलीग्स का सीरियस लोगों का ग्रुप बनाएं. मैंने एक ग्रुप में शामिल था जिसमें 4 और लोग थे और मैं उन 4 लोगों से कभी जिंदगी में नहीं मिला था. सिर्फ व्हाट्सएप पे हम 4-5 लोगों ने देखा कि यार कुछ सीरियस चीजें डिस्कस होनी चाहिए, सो वी मेड अ ग्रुप. और इन द एंड जब आप थ्योरी की प्रेपरेशन कर रहे हैं, अभी ना आपने वाइवा और टॉक्स की कोई टेंशन नहीं लेनी. ये अभी एक क्वेश्चन आया था तो मैंने कहा मैं साथ ही जवाब दे दूं. वाइवा और टॉक्स की आपने अभी कोई टेंशन नहीं लेनी. आपने सिर्फ और सिर्फ अपना फोकस जो है ना वो अब थ्योरी पे देना है. ये 4 मंथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको इसी तरह यूटिलाइज करना है. अब मैं अनम्यूट कर रहा हूँ सलमान को भी, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है वो चैट में मैसेज कर दे एंड देन आई विल अनम्यूट हिम, पूछ सकता है. So if anybody has any question, बेसिकली थ्योरी और वाइवे के लिए एक क्वेश्चन आया है, लेकिन टुडेज सेशन इज एक्सक्लूसिवली फॉर थ्योरी, इसलिए हम थोड़ा वाइवे को अभी टच नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन द एंड अगर टाइम हुआ तो हम आपको बता देंगे. एक क्वेश्चन आया है कि सलमान आप ये आंसर करिएगा. एक क्वेश्चन आया कि प्री टेस्ट को पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए. मैं उसके बाद बताऊंगा. मैंने पढ़ी थी प्री टेस्ट, मैं अपना रिव्यू दे दूंगा, पर मैं जो है वो पहले सलमान को चाहूंगा वो जवाब दे. सलमान, प्री टेस्ट पढ़नी चाहिए? पढ़नी चाहिए, ठीक है ना. मैंने भी पढ़ी थी क्या, मतलब हमारे जमाने में बहुत ज्यादा हॉट फेवरेट होती थी, तो मतलब प्री टेस्ट में से एमसीक्यू आते थे. एंड आई स्टिल रिमेंबर के 2% के गंदे से एमसीक्यू आए थे कि जिसको परसेंटेज उन्होंने पूछे थे वो प्री टेस्ट में से उन्होंने उठाए हुए थे. प्री टेस्ट का एक थोड़ा सा मसला है कि प्री टेस्ट के एमसीक्यू के लेवल ना बहुत ज्यादा आता है. वो आप करते हुए शुरू में कंफ्यूज हो जाते हैं. प्लस ये कि हमारे पास उसका ब्लैक एंड व्हाइट वर्जन है, उसमें बहुत ज्यादा एक्सरे रिलेटेड सवाल है. अगर आप एक्सरे रिलेटेड सवाल पढ़ लें इस तरह से, अगर आपको एक्सरे नहीं भी नजर आ रहा तो कोई बात नहीं है, ठीक है. लेकिन जब आप सेकंड रीड या थर्ड रीड दे रहे हैं तो फिर आप उन एक्सरे वाले सवाल को स्किप कर दें, क्योंकि एक्सरे वाले सवाल जो है वो आपके पेपर में नहीं आते. इसलिए उसमें जो बाकी टेक्स्ट वाले सवाल हैं मैं कहूँगा तो वो आप जरूर पढ़ें. मेरा तो ये ख्याल है. थैंक यू सलमान. प्री टेस्ट को एक और हमारे कैंडिडेट ने लिखा है कि बहुत इंपॉर्टेंट बुक है. आई एग्री कि एक इंपॉर्टेंट बुक है, लेकिन मैं फिर कहूंगा प्री टेस्ट का मैं हर चैप्टर डाइसेक्ट कर सकता हूं. मैंने उसको 3 बार पढ़ा था, लेकिन प्री टेस्ट के अगर आप पहले 3 चैप्टर्स देखें वो आपको इतना घुमा देते हैं, डिप्रेस कर देते हैं. और प्री टेस्ट मुझे लगता है कि अगर आपके पास टाइम है तो जरूर पढ़ें,
लेकिन अभी भी प्रायोरिटी में मैं इन किताबों के बाद रखूंगा जो मैंने आप लोगों को बता दिया। अगला क्वेश्चन अली ने किया है कि सॉफ्ट कॉपी ऑफ एमसीक्यू, बेसिकली वो सॉफ्ट कॉपी हम शेयर नहीं कर सकते, इंशाल्लाह इस मंथ के एंड पे हर जगह वो अवेलेबल करा देंगे। और बुक्स विद एक्सप्लेनेशन, ये मैंने जितनी भी किताबें मेंशन की हैं ना, अपूर्वा मेहरा के अलावा सारी एक्सप्लेनेशन के साथ हैं। और अगला क्वेश्चन है कि आर देयर एनी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और रीजंस टू स्टडी मोर। तो सलमान को मैं कहूंगा, सलमान इसका जवाब दें कि कोई ऐसे टॉपिक्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और ऐसे रीजंस जिनको ज्यादा फोकस करना है। जैसे मतलब कोई एग्जाम का पैटर्न है ना, देखिए 200 एमसीक्यूज हैं, दे कैन आस्क यू एनीथिंग, जिसका इरफान ने मेंशन किया, यू मस्ट नो समथिंग ऑफ एवरीथिंग और एवरीथिंग ऑफ, और हर चीज़ का थोड़ा थोड़ा आपको, अगर आपने कोई टॉपिक नहीं भी पढ़ा तो आपको उसका थोड़ा सा आइडिया उसका जरूर होना चाहिए। अगर कोई ऐसी सिचुएशन एमसीक्यू आ जाता है, अगर आपने टॉपिक टच किया होगा तो आप उस एमसीक्यू की 4 में से 2 ऑप्शन एटलीस्ट एक्सक्लूड करने के काबिल हो जाएंगे, अगर आपने थोड़ा सा टॉपिक पढ़ा हुआ तो। अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ, बिल्कुल ब्लैंक है, तो वो फिर आपका एमसीक्यू बिल्कुल अटेम्प्ट जो है वो आपकी जाया हो जाएगी, वो फायदा नहीं है एमसीक्यू का, तो आप उसको भी सुन सकते हैं। क्योंकि एग्जाम में तुक्के जो है ना, मेरा अपना मानना है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, एग्जाम में तुक्के ना 3 या 4 या 5, मेरा तो साला इससे ज्यादा नंबर में तुक्के नहीं लगते। अगर लोग कहते हैं कि मैंने तुक्के लगाया 20 में 30 हो गए, वो झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने पढ़ा होता है या वो उन्हें कोई चीज पता होती है। ऐसा नहीं होता कि आप बिल्कुल ब्लैंक जाए और आप तुक्के मारे आपके 20 सवाल पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं होता। आपके एजुकेटेड गेसेस ठीक होते हैं, आपके बिल्कुल ब्लैंक होते, मैक्सिमम 3 या 4 ठीक होते हैं, उससे ज्यादा आपके ठीक नहीं होते। इसलिए जब आप एमसीक्यू टॉपिक तो बहुत सारे पढ़े, दूसरा ये कि जब आप एमसीक्यू की ये जो इरफान ने भी मेंशन किए हैं, ये सारे बहुत अच्छे टूल हैं, ये सारे मैंने भी नहीं पढ़े थे। ठीक है, जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको कुछ आइडिया हो जाएगा कि यार कुछ टॉपिक जो है ना, जो हॉट फेवरेट है, जो कि हर दफा एमसीक्यू में आपका ही आता है। अब देखिए कोई भी एक टॉपिक है ना, लाइक केपी है, सिंपल सी मैं आपको मिसाल देता हूँ, केपी में से कम भी कोई 10,000 एमसीक्यू आप, अगर मैं अभी आपको कहूँ ना, तो आप कोई ऐसे एमसीक्यू बनाने में नहीं आते हैं, जैसे हमने टॉपिक पढ़ा हुआ। देखिए टॉपिक बहुत वैस्ट होते हैं, ठीक है, इसलिए, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि जो बार बार जो पूछे जाते हैं, उनकी किसी की आपको मेरे ख्याल में पता होनी ना ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप कुछ अननेसेसरी टॉपिक से ज्यादा टाइम जाया करें। इस तरह जब आप रिवीजन कर रहे हो तो तब आपको आइडिया होगा कि यार कुछ टॉपिक है ना वो हॉट फेवरेट है, उसमें से एमसीक्यू लाजमी आता है, उनको जरा ज्यादा अच्छी तरह टच करें, मेरा तो ये ख्याल है। थैंक यू सलमान। सलमान हमारे पास 10 मिनट्स हैं और हमारे पास 9-10 क्वेश्चन और है, जल्दी जल्दी उसका जवाब देते हैं। सलमान ने इस क्वेश्चन का बड़ा तफसीली जवाब दे दिया और बेसिकली वही बात है कि हर टॉपिक जो है ना उसके बारे में कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। इसमें सिर्फ ये ऐड कर दूं कि मैंने सीपीएसपी की स्कीम एग्जाम देने के बाद देखी है कि वो किससे कितने क्वेश्चन देते हैं। तो उनका जो मेन फोकस है ना, उन्होंने लिखा हुआ है कि वो ट्रॉमा, पीड्स और स्पाइन से ज्यादा क्वेश्चन देते हैं। लेकिन एग्जाम में हमें नहीं पता चलता, बाजुकात कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो इसलिए आपको हर टॉपिक पढ़ना है, थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन हर एक की रखनी है। और दूसरा, सर्वाइविंग ऑर्थोपेडिक्स की जब किताब आएगी तो उसमें जो रेपिटेशन होगी ना पास्ट पेपर्स की, वो आप देख लेंगे कि किस में से ज्यादा आता है। अगला क्वेश्चन है कि अपूर्वा मेहरा का कितना फायदा। आई हैव रेड इट वंस एंड आई लाइक इट अलॉट। बेसिकली अपूर्वा मेहरा बहुत ज्यादा लोगों ने नहीं पढ़ी, मैं इसको बेसिकली इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको 3 बार पढ़ा था। और मेरा ख्याल है कि अपूर्वा मेहरा के कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो लगता है कि ये तो लास्ट टाइम सीपीएसपी में आए थे। तो अपूर्वा मेहरा का काफी फायदा है। मैं तो कहूंगा अपूर्वा मेहरा को एटलीस्ट, अगर पूरी नहीं पढ़नी ना, उसके सिर्फ एमसीक्यूज पढ़ लें। एमसीक्यूज विद एक्सरे इमेजेस आर इम्पोर्टेंट। यार एमसीक्यू विद एक्सरे इमेजेस जो बुलेट्स के हैं, मैं रिकमेंड करूंगा करें, क्योंकि दे मेक योर बेसिक्स वेरी स्ट्रॉन्ग। और जैसे सलमान ने कहा, मैं बिलीव करता हूँ, मेरा और सलमान का क्लिनिकल भी एक ही दिन था और हम दोनों जो है वो हम एक ही दिन पास हुए अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें, मैं आपको बता दूं कि क्लिनिकल में आपका थोड़ा बहुत तुक्का लग सकता है, रिटर्न में नहीं लग सकता। रिटर्न इज डिफिकल्ट देन द क्लिनिकल एग्जाम। रिटर्न पास करके क्लिनिकल बहुत आसान हो जाता है। अच्छा, प्री टेस्ट मस्ट बी मेंशन्ड, क्वेश्चन कम्स एज सच अराउंड। ठीक है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरी एक अपनी असेसमेंट थी, बट आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन के प्री टेस्ट को पढ़ना चाहिए। फ्रॉम वेयर टू गेट बुलेट्स अनपेड वर्जन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है सलमान, मैं भी ये मिस कर गया। सारे जो बुक शॉप्स हैं अभी जितने भी हैं, वहां पे अनपेड वर्जन पूरा नहीं है। आपने हर फाइल, स्पोर्ट्स, स्पाइन, पैथोलॉजी, हर अलग अलग डाउनलोड करके प्रिंट करनी है। मैंने भी की थी प्रिंट।
ठीक है। सो इसलिए आपने ऑर्थो बुलेट का अनपेड वर्जन जिसके 1500 सवाल हैं वो पूरे करने हैं। Anybody has soft copy of pre-test? Do you think MCQ pattern has changed as we are doing MCQ on computer? अभी तक पिक्चर्स वाले MCQ नहीं आए। मिलर बुक इज इनफ और नॉट टू पास द एग्जाम। जैसे सलमान ने कहा है एक किताब इनफ नहीं है, मेरी एक वीडियो है वो आप देख लीजिएगा, उसमें 3 स्कीम शेयर हुई है। मिलर इनफ नहीं है, मिलर के साथ आपको बुलेट कंबाइन करनी पड़नी है। बहुत सारे लोग हैं वो मिलर पढ़ के भी पास हुए हैं, लेकिन हमारी मेरी भी सलमान की यही रिकमेंडेशन है कि मिलर अकेली से नहीं पास हो सकता। सलमान, कैन यू हेयर अस? आई थिंक सलमान का कनेक्शन लॉस हो गया। मेरा तो ये ख्याल है कि आप हाँ एटलीस्ट हाँ हाँ मेरी आवाज आ रही है। हाँ हाँ आ रही मैं तो आवाज ये अब। कहूँ कि एटलीस्ट 2 बुक्स लाजमी लाजमी होनी चाहिए। एक बुक इनफ नहीं है। आई एग्री विद योर ओपिनियन। 2 ठीक है। बुक्स। विकास ने एक थोड़ा क्वेश्चन सा पे, मुश्किल, एक जी थोड़ी जी सी मैं बात करना एक जी छोटी जी सी बात मैं करना चाहूंगा जी जी कि शुरू में ना बड़ा मुश्किल लगता है मुझे भी। जब शुरू में सीनियर्स ने बताया कि जो आपने कैम्बल के साथ ना बुलेट मिला के पढ़े, तो मुझे भी लगता था यार कि मैं कैम्बल ऑलरेडी इतनी बड़ी किताब पढ़ूं और साथ में मैं बुलेट भी पढ़ूं, तो ये क्या मतलब मुसीबत है ना, मैं कैसे 2 बुक्स पढ़ूंगा। लेकिन शुरू जब आप स्टार्ट करते हैं ना, शुरू में आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। जैसा मैंने कहा कि आप मोबाइल को वो टॉपिक खोलें, बुलेट में बहुत प्रिसाइज करके लिखा था, लेकिन उसमें हर वो इम्पोर्टेंट बात लिखी होती है जो कि एमसीक्यू वाइज और टॉपिक वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसकी छोटी सी जो है ना उसका नोट्स बनाते हैं, अपनी मेन बुक जो भी आप उस पर भी आप मेन बुक बना रहे हैं, आप उस पर वो पॉइंट्स लिखते हैं ताकि अगली दफा आपको मोबाइल खोल के पुलिस ना देखनी पड़े। और बुलेट का एक फायदा ये भी है कि बुलेट के एमसीक्यू ऑनलाइन भी कुछ वजह से आप क्वेश्चन मार्क बनाता हूँ उनके साथ पॉइंट्स के साथ, आप वो भी देख सकते हैं। आप वहाँ पे वो एमसीक्यू इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इज इट नेसेसरी टू रिव्यू कैम्बल इफ वी जस्ट स्टडी बुलेट एंड मिलर सो वी कैन स्किप कैम्बल? बेसिकली मैं ये कहूंगा कि इस क्वेश्चन पे ना आप थ्योरी पास कर लेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा क्लिनिकल में नुकसान होगा, इसलिए कैम्बल से ना टेबल्स और प्रोसीजर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगला सवाल है कैन वी डाउनलोड इट सीपीएसपी स्कीम लिंक? हमारे पास सिर्फ 5 मिनट रह गए, बस अब जल्दी से हम करते हैं। सीपीएसपी की स्कीम कॉन्फिडेंशियल है, सो सम डे मैं किसी ना किसी तरीके से आपसे थोड़ी और शेयर कर लूंगा, लेकिन उसका कोई खास फायदा नहीं, बट आई हैव सीन दैट दे डोंट फॉलो दैट स्कीम टोटली। फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर एमसीक्यू बुक्स चैप्टर वाइज एंड गुड एक्सप्लेनेशन। अच्छा सर, एक बार फिर से स्टडी प्लान की स्लाइड दिखा दें। स्टडी प्लान की जो है ना, बेसिकली ये मैं वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, एक मेरी और वीडियो है स्टडी प्लान की, उसमें एक स्लाइड बनी हुई है जिसपे 3 प्लान्स लिखे हुए हैं मैंने। सर, इज द सर्वाइविंग ऑर्थोपेडिक विल बी अवेलेबल इन पिशावर? जी इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल होगी। ऑर्थोपुलेट अनपेड वर्जन की किसी पीडीएफ वर्जन है तो काइंडली शेयर इट। चलें, सर्वाइविंग ऑर्थोपेडिक ग्रुप में मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा जितने मेरे पास हैं। सर्वाइविंग ऑर्थोपेडिक हर जगह हम अवेलेबल कराएंगे, इस महीने आ जाएगी और कोशिश करके इस महीने या अगले महीने तक हर जगह अवेलेबल कराएंगे। एक क्वेश्चन है, मैं कहूंगा सलमान ये आपने आंसर देना है। अगर मिलर एज अ टेक्स्ट बुक रखी जाए और उसके साथ ये तमाम बुक्स कंबाइन कर लें तो वो बेहतर है, या मिलर को ऑर्थो बुलेट के साथ कंबाइन करने की जरूरत पड़ेगी? अच्छा, मिलर मैंने पढ़ी इसलिए मैं इसका आंसर दे देता हूँ। हस्बे टाइम ले जाए। अच्छा, अब आपके पास 4 महीने हैं, मैं आपको कहूंगा कि अभी ना आप बुलेट्स को कंबाइन कर लो। बुलेट्स को टॉपिक फटाफट, जैसे सलमान बता रहा था कि मोबाइल से देखा और मोबाइल से देख के ही ना वो फटाफट आपने उसमें कर लिया। बुलेट्स को अभी कंबाइन कर लो, ये नहीं है कि पूरी बुक बुलेट्स लें, आप उसको खोलें, पढ़ें, ये सारा कुछ करें, नहीं। इट्स इनफ कि आप बुलेट्स को मोबाइल पे उसी टाइम खोला जो मिलर से टॉपिक पढ़ा और उसके स्टिक नोट्स लगा लिए। मैं फिर कहूंगा मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके हाउ टू प्रिपेयर एफसीपीएस थ्योरी एग्जाम, उसकी वीडियो एक बार देख लें, आपको और सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो सलमान, अब आप एंड पे कुछ कहना चाहें, 3 मिनट हैं, आप इसमें से 1-2 मिनट ले लें अगर आप कुछ और भी बताना चाहें सबको। जिसका भी मैं मिलर वाला सवाल पूछता हूँ उसमें ये है कि यार आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा हो कि हर बंदा 2-2 बुक्स, मैं भी क्यों 2 बुक्स पे जोर दे रहे हैं? सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि एक बुक में सारी इंफॉर्मेशन नहीं होती और आप एक बुक से सारा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए एक लिमिटेशन है। अगर हम जैसे मैंने कैम्बल पढ़ी है, कैम्बल में बहुत सारी बातें तो वहाँ पे आके लिखी होती हैं, आपको एक्सपेक्ट करने में ना बड़ा टाइम लगता है उसको। इसलिए अगर आप साथ में सेकंड बुक रखते हैं तो आपको फायदा होता है कि आपको ना पता होता है कि यार इसमें से ना काम की बात मैंने क्या निकालनी है। इसलिए मेरा ख्याल ये है कि इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जैसा मैंने कहा कि मोबाइल से टॉपिक पढ़ लिया था ना, इसी तरह मैंने भी मोबाइल से पढ़ा था, मैंने बुक नहीं देखी। ठीक है, बुलेट्स की तो आप बुक
मोबाइल में पढ़ लेते हैं तो बड़ा आसानी हो जाता है, और उसके स्टिकी नोट्स बनाकर आप लिखें। और आपको पता लग, जब आप टॉपिक पढ़ेंगे दोनों बुक्स को कंपेयर करेंगे तो आपको पता लगेगा 90% जो बुलेट ने बातें पॉइंट बना के लिखी हैं वो कैम्बल ने या मिलर ने मिक्स करके लिखी है। आपको उनको हाईलाइट करना है, आपको पता लगेगा इस तरह से कि कौन सा मेरा पॉइंट है, कि बस वो मैंने स्टिकी नोट्स पे वो उतारना है। बस मेरा तो ये ख्याल है कि आप इस तरह से करेंगे तो इंशाल्लाह आसानी होगी, कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच सलमान, वी आर वेरी हैप्पी टू हैव यू इन दिस सर्वाइविंग ऑर्थोपेडिक ग्रुप एंड वी होप कि इंशाल्लाह हम ऐसे मोर लेक्चर्स करेंगे। आखिर में एक क्वेश्चन सिर्फ रह गया, बुलेट इज लेंथी, मिलर याद रखना ज्यादा जरूरी? डेफिनेटली मिलर आप याद रखें, बुलेट लेंथी है, आई एग्री विद यू, लेकिन ये जरूर है कि बुलेट्स आपको एक रिवीजन देती है। जैसे आपने मिलर से टॉपिक पढ़ा, कैम्बल से पढ़ा, जैसे सलमान कह रहा है मोबाइल से खोल के देख लें, कोई जरूरत नहीं है, या लैपटॉप से देख लें। ठीक है, थैंक यू सो मच। हम इंशाल्लाह ताला ये थ्योरी से पहले एक आधा और सेशन करेंगे, जैसे ही हमारी किताब आ जाएगी हम इंशाल्लाह ताला एक दो सेशन और करेंगे जिसमें हम कोई रिव्यूज, क्विक रिव्यूज करेंगे। हम कंबाइन इंशाल्लाह प्लान कर रहे हैं कि मैं और सलमान कंबाइन कोई घंटे घंटे का सेशन रखें, जिसमें दो दो घंटे का, जिसमें हम कोई मॉड्यूल भी आप लोगों के साथ रिवाइज कर लें। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स एंड स्पेशली सलमान, थैंक यू सो मच। Inshallah Taala, we will be doing such things in the future. Allah Hafiz. Thank you so much.